Good afternoon, Mayuriji. Thank you for joining early. I hope you can hear me and see my screen. So we shall start in another 10 to 15 minutes. In the meantime, if you have any questions for me, I can definitely answer. So right now there's only Mayuriji in the forum. I'm hoping for more people to join soon. So those of you who are watching this on YouTube, let me just introduce myself. My name is Abhishek Bose, and I have close to 16, 17 years of industry experience. I work with Mr. Sanjeev Jain at CUIT Box, and it's been about close to 2.5 years working with him. I take care of our consulting, division, where if you have any specific, requirement which our tools and training is not covering, that is one thing that I take care of. I also have an entire team of developers that help me execute my projects. So I don't do the entire thing by myself, definitely not. uh, we at CUIT Box have over 215 different business automation tools. um, to sort of summarize what we do at CUIT Box, you can say that we create ERPs for the micro and the small business segments. And primarily what we do is on the G Suite space. So that is what we do at CUIT Box. Uh, if you want to access any of the previous MIS Saturday workshops which we have been doing every alternate Saturday, you can access our YouTube channel by going to this website here. So it's https://itpx.in/yt. If you click on that, it will take you to our YouTube channel. This channel is managed by Sanjeev sir and his team. And if you go to the playlists here, you will find all the previous MIS Saturdays that's done. Very honestly, if you look at all of these videos, I think you would pretty much know whatever you need to know to handle MIS or a DNE profile. So this entire resource is absolutely free for any of you who are watching this YouTube video at the moment. Also, along with this, I have some paid programs, which is basically the DNE workshop that I do. It's a 4 hour into 7 day workshop. And if any of you are interested in knowing about the DNE program, you can go to this site here. It's itbx.in/DNE program. Okay, here you will basically get to see the entire session that's happening. And the current session is going to finish on the 25th of May, and then we are going to start the next session in the next month. Here I talk about a lot of things that an MIS or a database management expert person should be knowing. This particular program is aimed for that profile, and I would recommend people with little bit of experience to join this, and not like a complete fresher, because we do try and arm you with uh, real life tips and tricks, and a lot of complicated formulas as well. um, if you are a complete fresher, you can join it and you can try and follow along.
We will be giving you the videos as well, and you also get a year's worth of support to actually come back to us at any point of time and ask your questions. Uh, but yeah, we start with basically the database structures and securities. We talk about advanced formulas that one must know. It's not like you need to know every single formula, but there are definitely some formulas which are more important than the other formulas which have universal applicability. We focus on those formulas first, and then we talk about a lot of other things. We also talk about a lot of add-ons, applications of Google Forms, how to create pre-filled form links, difference between pre-filled form links and a formatted URL, how you can automatically send emails when somebody fills a form, how you can create automated workflows from forms using Google Forms. We also teach you how you can automatically create document and attach it to a mail body and send it out. You will not even need to be in front of your system. The entire thing can happen automatically. So all of that is taught, and up until here, whatever I've told you, you don't really need to know how to do scripting. So that's also another beautiful thing. On the fifth session, we talk about a flow monitoring system, which is a basic flow monitoring system. There, we teach you how the steps of your business can be actually monitored against what is pending, and how can reports be generated out of it, so that as a business owner you are only focused on what is pending. We follow the principle of management by exception. So you are only expected, the business owner is only expected to look at where his attention is necessary. Otherwise, everything is working, fine, right? The sixth session, we talk about, Google Data Studio. We talk about advanced pivots, with slicers, and also obviously, charting. And then the seventh session, we have sharing of best practices among the group. And we also do an entire recap of whatever we have learned, because by the end of the seventh, by the time we reach the end of the seventh session, we have actually spent about close to 2 months. So obviously, there could be some things that people might forget. So we do a recap, and then we do a certification program where you get a certificate from CUIT box, digitally signed by Mr. Sanjeev Jain, with your marks on it. So that has a lot of value in the industry. All right, so I see a lot of people have joined in already. So welcome, welcome, welcome. I see a lot of known names. The usual suspects are all here. Good to see you guys. Good afternoon, everyone. Good afternoon. So these, MIS Saturdays, like I was saying earlier, we do this every alternate, Saturday. And last Saturday, we, stopped at these text functions. We had done, I think we had done text join, unique, concatenate, write, text, regex match, and regex extract. Okay, we had done these. Today we will be looking at the sum product, transpose, and also these web functions. Okay, those of you who need to pull in data from the internet for your day-to-day activity, these functions can definitely help. Import range is something that if you're working with Google Sheets, you must know. So please hang on. एज ऑफ नाउ, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चंस ले सकता हूँ, बिकॉज अभी तक तो टाइम हुआ नहीं है. इट बी अनफेयर ऑन माय पार्ट टू स्टार्ट अर्ली. सो अभी तक अगर आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हो. Anything related to spreadsheet, since you guys are here early, please ask. I hope to be able to answer, but if not, I will ensure that I dig for the answer and I reach out to you guys one way or the other. अगर आप चाहते हैं तो आप अपना स्क्रीन भी शेयर करके पूछ सकते हैं कुछ. Workday formula, not
working sometime. So workday formula, what is the problem that you're having? Can you show me? If you can give me an example, because I have honestly not faced, the any challenges with it. अगर आप आपका दिखा सकते हैं तो इट्स नॉट स्किपिंग हॉलीडेज. अच्छा, सो अच्छा देखिए, अगर वर्क डे फॉर्मूला हॉलीडेज स्किप नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक ही हो सकता है कि आपका जो हॉलीडेज का जो फॉर्मेट है, ठीक है ना, जो डेट का जो फॉर्मेट्स है, उसको आप चेक कीजिए. इट इज पॉसिबल दैट दे माइट नॉट बी इन द राइट फॉर्मेट. सो start date, number of days and holidays is a you know क्या बोलते हैं इसको, नॉन मैंडेटरी, ऑप्शनल, ठीक है ना. सो दैट इज बेसिकली द वर्क डे दिस थिंग. सो ये करेगा क्या, आप कुछ भी डे से आप स्टार्ट डेट आप डाल सकते हो, ठीक है. उसके बाद आप इनको बताओगे कि ये नंबर ऑफ डेज कितना उनको देना है, ठीक है. तो वो बता देगा कि काम कब तक खत्म हो जाना चाहिए. मतलब लेट्स से आई एम टेकिंग टुडेज डेट, ठीक है. I am saying that uh, I will give somebody 12 working days. Okay. And then I'm saying I also have a list of offs. Okay. Let's say 17th is a holiday. Also, let's say 19th is a holiday. ठीक है. These are my list of holidays. तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ वर्क डे, स्टार्ट डेट हो गया ये, ठीक है. सेकेंड मेरा हो गया नंबर ऑफ डेज, ये हो गया मेरा 12. और अब हम आ जाते हैं हॉलीडेज पे. हॉलीडेज हो गया मेरा ये लिस्ट, ठीक है. तो आपको ये बताएगा कि व्हेन शुड दिस वर्क गेट कंप्लीटेड, ठीक है. अब वर्क डे का जो फंक्शन है, इसमें ये बता रहा है कि इफ यू आर टेकिंग 12 डेज फ्रॉम दिस डे, यू विल बी फिनिशिंग ऑन द 2nd ऑफ जून, ठीक है. सो इसको हम फॉर्मेटिंग ये ले लेते हैं, 2nd ऑफ जून, ठीक है. वाई 2nd ऑफ जून? लेट्स लुक एट द कैलेंडर. So from here, normally if I calculate 12 days, so it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It should be 25th of May, but it is showing you 2nd of June. Why is it showing you 2nd of June? Let's try and look at it this way. So I will take 14 because 14, अच्छा 14 भी यहाँ पे नहीं आएगा because by default workday का जो फंक्शन है, वर्कडे का फंक्शन आपका बोथ सैटरडे एंड संडे बोथ ये ऑफ कर देगा. ओके, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. सो इट विल बी 17. आप काम नहीं करोगे, ठीक है, बिकॉज 17th इज अ हॉलीडे. 18th इज द फर्स्ट डे व्हेन यू विल बी वर्किंग. 19th इज अगेन एन ऑफ. ओके, सो ये हो गया 1, देन हो गया 2. अच्छा, आई मिस्ड 16. सो सॉरी, दिस इज द फर्स्ट वर्किंग डे. Then 17th is an off. So I will start recounting again. Sorry. So 16th is the first working day, which is a Monday. 17th को हमारा छुट्टी है. 18th को we will be working. 19th को again छुट्टी है. And then we keep counting by skipping only the Saturdays and Sundays. So let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सेकेंड बराबर आंसर आ रहा है, ठीक है. विच फॉर्मेट इज करेक्ट? सो नो फॉर्मेट, नो फॉर्मेट दैट इज रिकग्नाइज्ड एज अ डेट इज इनकरेक्ट. लुक एट इट दैट वे. अगर आपका एक काम कर लीजिए, इफ यू आर एबल टू डबल क्लिक ऑन अ सेल एंड इफ यू आर एबल टू सी दिस कैलेंडर, दैट मीन्स वो करेक्ट डेट फॉर्मेट में है. ये जरूरी नहीं है कि ये DDMMYY है या YYMMDD है. दैट डज नॉट मैटर. इट शुड बी इन द बैक एंड, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ डेट एक्चुअली, ठीक है ना. तो इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो नहीं आएगा,
बट यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो डेट आ गया, ठीक है ना। तो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। एक और चीज जो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, there's a formula called is date, ठीक है। आप is date कर लीजिए और इस जो वाला सेल है उस पे आप डाल दीजिए, ठीक है, पॉइंट कर दीजिए उसको। इफ यू ड्रैग दिस डाउन, ये देखिए, if this is not in the correct format, so let's say I say 20-06/2022, you see this is coming up as false. So this formula can also let you know that Google Sheet or Excel is recognizing this date as a correct format or not. इसको I let me try a dash here, ये देखिए, either dash or even a slash would be accepted. Even a slash is being accepted. ठीक है, you're welcome, Chetan. So let's move on to today's topic. ठीक है, some product. ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। ये सम प्रोडक्ट पे मैं 4 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, ठीक है। बट इफ यू गाइज वांट इट, यू नो, वी कैन डू इट। इफ यू गाइज वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट, वी कैन डू द बेसिक्स ऑफ इट, ठीक है। एक बार देखते हैं, ठीक है। हेलो, मेरा नाम हरीश है। तो आज हम सम प्रोडक्ट वाला फंक्शंस देखेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो सम प्रोडक्ट फंक्शन करता क्या है उसकी आई होप यू ऑल कैन हियर द साउंड, राइट। हेलो, मेरा नाम हरीश है। तो आज हम सम प्रोडक्ट वाले फंक्शंस देखेंगे। तो सम प्रोडक्ट फंक्शन करता क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हम। कैलकुलेटिंग द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनटू इक्वल साइड्स एरेज और रेंज। इसका मतलब कि मेरी जो भी दो सेम रेंज होंगी, मैं उनका मल्टीप्लाई सम दूंगा आपको। मीन्स जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर दो रेंज ले लिए हैं, एक है क्वांटिटी की, एक है रेट की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हम सबसे पहले अगर हमें इनका टोटल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दिस सेल इनटू दिस सेल, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसे डाउन करते हैं। अब हम लास्ट में इसका टोटल निकालते हैं। और जब हम इन सब का टोटल निकालते हैं तो ये हमें अपना पूरा टोटल जो हमारी अमाउंट होती है वो दे देता है, ठीक है। बट इसे करने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम इसकी जगह सम प्रोडक्ट लगाएं तो। सम प्रोडक्ट का जो सिंटैक्स है वो आपको मालूम ही होगा। फर्स्ट एरे कॉमा सेकंड एरे। हम इसमें और भी एरेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमें सिर्फ दो एरे की ज़रूरत है। तो फर्स्ट एरे हमने सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, देन सेकंड एरे। अब मैं इसे एंटर करूँगा तो देखिए, जो मेरा टोटल करने के बाद एंड उसका भी सब टोटल लास्ट टोटल करने के बाद आ रहा था, वो मेरा सम प्रोडक्ट से आ सकता है। तो इसका लॉजिक है कि ये हमारे फर्स्ट रे के फर्स्ट सेल को एंड सेकंड रे के फर्स्ट सेल को मल्टीप्लाई करता है, एंड जो भी आता है वो सेकंड सेल और दोनों रेंज की सेकंड सेल को मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो ऐड कर देते हैं। ऐसे ही जो हमारा सारा ऐड होके लास्ट में आता है वो हमारा सम प्रोडक्ट से आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सम प्रोडक्ट का फंक्शन था। अब ये जो बताया, ठीक है ना, इसमें तो ओके, very honestly, this is what some product was originally meant for. But you know, there is a debate. You know, when some product was created, Microsoft themselves, you know, they did not know the versatility of this particular product, of this particular function. Sorry, ठीक है ना। इसको आप बहुत क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज में भी यूज कर सकते हैं इसको। यू कैन यूज इट एज अ काउंट इफ एस, सम इफ एस, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज दिस ऑलमोस्ट लाइक अ लुकअप फंक्शन एज वेल,
ठीक है, ये I've never used it for that purpose. Yeah, so Sadbir, obviously, you'd be using it for more complicated, purpose is what you're saying, right? नो सर, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं थे, लेकिन हाँ मतलब इस पर्पस के लिए नहीं, मतलब अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, लेकिन हाँ काफी ऐसा ये है कि मतलब अलग अलग काम हो जाते थे तो अगर आप लोग देखना चाहोगे तो मैं दिखा सकता हूँ थोड़ा यस सर, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेशंस, ठीक बिल्कुल। है। So let's see. Okay, I will create this worksheet. I'll sort of replicate this. Let's say product हो गया, quantity हो गया, rate and amount. This is what was there, right? A, B, A, B, A, let's say E, let's say B, फिर A, फिर B, ठीक है। Quantity and rate, let's get some random values. Okay, and normally what we will do is we'll get the amounts here, which is this into this. ठीक है, नाउ अब अमाउंट के बाद आप लोग जनरली क्या करेंगे, यहाँ पे यू विल प्रॉब्ली लाइक मे बी merge it and say total, and here you will do a sum like this, right? So D2 से होगा, ठीक है, D2 से लेके D10 तक ये आप ऐसे इसको आप सम करोगे। तो ये जो फाइनल जो प्रोडक्ट है इसका जो मतलब आउटपुट जो है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, ये पूरा अमाउंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और उसके बाद ये सारा जो अमाउंट है उसको यहाँ पे सम करना पड़ रहा है। सिंपली पुट, सम प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है, इट कैन एलिमिनेट द यूज ऑफ दिस कॉलम इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट, एरे 1 मतलब यहां से लेके यहां तक, एरे 2 हो गया यहां से लेके यहां तक। प्लीज एंश्योर कि ये जो दो एरेज हैं इसका नंबर ऑफ सेल्स सेम होना चाहिए, ठीक है ना, द हाइट हैज टू बी सेम, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। क्लोज दिस, हिट एंटर, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है देखिए सेम आ रहा है। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ सम प्रोडक्ट। So Chetan is asking how sum product recognize that answer in multiply. I did not quite follow Chetan. How sum product recognize that answer in multiply मतलब ये देखिए this into this इसने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके एक आंसर आया, ऐसे करके के सबको इसने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक एक आंसर लाया। अब ये जो सारा आंसर्स आया, ये सारा आंसर्स का इसने सम कर दिया, तो ऐसे ये सम प्रोडक्ट आता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स से यू वांट टू नो कि प्रोडक्ट ए का टोटल कितना क्वांटिटी मेरे पास सेल हुआ है, ठीक है। सो आई वांट टू से सम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, ये भी आप सम प्रोडक्ट से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ, whenever you are doing a sum product, अगर आपके पास एंड क्राइटेरिया है, ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास और क्राइटेरिया यूज करना है, देन यू कैन यूज द प्लस साइन। सो एंड के लिए इट इज मल्टीप्लिकेशन, और के लिए इट इज प्लस।
ठीक है। अब हाउ इज दिस रेलेवेंट, ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताने वाला हूं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आई हैव टू फाइंड आउट, जहां जहां पे ये ए है, इस ए का क्वांटिटी का सम कितना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट, मेरे पास फर्स्ट एरे जो मेरे को देखना है, विच इज ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट को मुझे देखना है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ए है। तो ये जो एक कंडीशन में अभी इसको मैं टेस्ट करने वाला हूँ, इसको सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट आप कर लिए, यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया, ठीक है। इसको देखिए, जैसे मैं क्लोज करता हूं एरे वन का, ऑलरेडी मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है 4। इसका 4 का मतलब क्या हो गया, इसको मैं दोबारा क्लोज करता हूं एक बार सम प्रोडक्ट को। अब देखिए, मतलब देयर शुड बी 4 एज हियर, 1 2 3 4। यू सी, this has already given me the count of the number of product A's. Ab, what I need to do is I need to simply multiply all the product A का corresponding जो quantities है with this value. What this does in the back end is, यहाँ पे देखिए जहां जहां पे ये A है, ठीक है, यहाँ पे वो ट्रू लिखेगा, ठीक है। जो एक वर्चुअल एरे क्रिएट हुआ है बेसिकली, ए के जगह ने उसने ट्रू डाला है, और जहां पे ए नहीं है वहां पे उसने फॉल्स डाला है, ठीक है। तो ये ऑल दिस, इट हैज बेसिकली क्रिएटेड अ वर्चुअल एरे ऑफ ट्रूज एंड फॉल्सेस, ठीक है। इसके बाद व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई wherever there is a true with the quantity. So if you multiply true and the quantity, you will get a value error. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जहां जहां पे ट्रू आ रहा है वो ट्रू को हम कन्वर्ट कर लेंगे with a 1, and जहां जहां पे false आ रहा है we will convert all the falses with a 0. The quickest way of doing that is basically you can put a double dash before this, ठीक है, two minus signs basically, okay, that can also work. Another thing that can work is you can multiply this with 1 into this cell. तो ये क्या करेगा, सारा जहां जहां पे ट्रू है उसको 1 1 1 कर देगा, ठीक है। Another way of doing this is you can simply multiply the whole thing itself. Instead of putting a comma and then the other array, what we can simply do is we can even put a multiplication sign like this. You put a multiplication sign, and then the other array that is there, which are basically quantity, you put that here and you hit enter. This has given you the sum of all the quantities, okay. So there are, I was saying, couple of ways of doing this. One is this. Another way of doing it is, instead of multiply, you can still go ahead and put a comma, but you will have to put a multiply by 1, okay. You're getting the same answer. Another way of doing it, you can still go ahead and put a comma here, but you will have to put a double dash and hit enter. All of them are giving you the same answers, okay. How many of you got this? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है तो बताओ। बाउंसर, ओके। How do I display this? एक second, let me just think through.
1 second, huh, guys? I'm just trying to set up something. I have not tried this before, this method of explanation, but I'll just see if this works. I'm going to say this cell multiplied by 1. आ गया. ये देखो, ट्रू और फॉल्स का जो वैल्यूज होता है ना, उससे अगर आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वो बेसिकली वो कन्वर्ट कर देगा उसको. ठीक है, ट्रू को 1 में कन्वर्ट करेगा और फॉल्स को 0 में कन्वर्ट करेगा. ये क्लियर है? ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसका सम प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, ये आप जान लो. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक मैथमेटिक्स. ठीक है, बेसिकली डीलिंग विद बुलियन वैल्यूज. ठीक है, तो अब अगर देखो यहाँ पे मेरा वंस और जीरोस मेरे पास यहाँ पे आ गया है. ठीक है, नाउ अगर मैं ये 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास आंसर क्या आने वाला है? यही आंसर आएगा जो 38 है, वही आंसर आने वाला है मेरे पास. करके एक बार देखते हैं. लेट मी ऐड अ फ्यू कॉलम्स हियर. यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग इज दिस सेल इज इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल. एंटर. अब आप देखिए जहां जहां पे ट्रू है, this particular thing has given me ones. जहां जहां पे false है, this has given me 0. Now because there is a 1 here and I'm multiplying this 1 with this quantity, I'm getting 55. Because there is a 0 here and I'm multiplying this 0 with this 48, I'm getting a 0. Now what is the sum product going to do? The sum product is simply going to take the summation of all the products. Product मतलब multiplication. ठीक है, so if I summarize all of this, I'm getting 128 here. यही सेम आंसर आपके पास यहाँ पे आ रहा है. So Rahul, now you can defend it. ठीक है, so now you can use this concept. देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करके दिखाया. ठीक है, there are other ways of doing it, is what I was telling you. You can either multiply this with a 1 like I've done it here. आप आगे करो मल्टीप्लाई, पीछे करो मल्टीप्लिकेशन, doesn't really matter. Second thing, आप इसको यहाँ पे instead of multiplying it at all, okay, you can even multiply the entire thing. ये भी काम करता है. ठीक है ना, this is actually one of the pro tips. ठीक है, you don't even need to use the double dashes in some cases. ठीक है, और इसके साथ you can also use this double dash. ये double dash is basically within this bracket itself. ठीक है, so within this bracket itself, when you're using those double dash, it basically does the same job of multiplication. It converts all the sets of trues and false into ones and zeros. उसके बाद basically you are multiplying it with the another array. ठीक है, तो इसका एप्लीकेशंस कहीं जगह होता है. ठीक है, अगेन आई डू नॉट recommend use of sum product. ठीक है, lot of you might hate me for this, a lot of eyebrows might go up, but I do not have enough time to tell you, why not with examples, but I will tell you why not at a broader level. ठीक है, when you're using sum product, you cannot write the sum product in an array formula. ठीक है, आपको हर एक सेल में sum product लिखना पड़ता है. This is already in an array, but what we need is, let's say, multiple values, like sum of quantities of A, sum of quantities of B, sum of quantities of C, like this. So आपको हर एक जगह अलग अलग sum product लिखना पड़ेगा. Instead, what you can do is you can write a query function which will give you the entire result with just one formula in one cell. In Google Sheet, resource constraint is a very important thing to keep in mind. So you cannot go on writing formulas in every single cell. You have to try and have all your formulas within array formulas. ठीक है, so I understand there could be some requirements जहाँ पे
लेट्स से आपका बैलेंस क्वांटिटी, ठीक है, बैलेंस क्वांटिटी इज वन मेजर प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ पीपल कि इतना सामान हमने ऑलरेडी भेज दिए हैं, ये उसका समरी है प्रोडक्ट वाइज फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंट, तो वहां पे आप लोग समीफ शायद यूज कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही आप वहां पे समीफ यूज कर रहे होंगे फॉर योर इन्वेंट्री, योर शीट विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन. What you can do is you can write a query function which will do all the summation, or you can even do a pivot table, ठीक है ना. I have explained pivot table in the first class itself of my MI Saturday. You can go back to the channel and see the first video. You can just do a pivot table, and from that pivot table you can simply do a VLOOKUP in an array. VLOOKUPs in arrays are also explained in the third or the second class. Okay, so I would recommend use of that as opposed to this. Also इसके अंदर आपको अब मान के चलिए कि आपको और क्राइटेरिया यूज करना है. यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि प्रोडक्ट ए का सम ऑफ क्वांटिटी मुझे लाके दो, ठीक है. आई एम गिविंग यू अनदर सिनेरियो हियर. आई एम सेइंग ए एंड सी लेट्स से, ठीक है. मुझे ए का भी कितना क्वांटिटी सेल हुआ है वो भी चाहिए, और सी का भी कितना क्वांटिटी सेल हुआ वो भी चाहिए, ठीक है. तो फॉर एंड व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डन अ मल्टीप्लिकेशन. फॉर और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू अ प्लस, ठीक है. ये दोनों चीज याद रखना आप, ठीक है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट. ओके, we have to look at an or condition, ठीक है. So open bracket first because this is a condition itself. Open bracket के अंदर यहां से लेके यहां तक equals to, now I have to put within quotes, ठीक है, equals to a. इसका मैंने क्लोज कोट कर मतलब ब्रैकेट क्लोज कर दिया. दिस इज माय फर्स्ट सेट ऑफ क्राइटेरिया प्लस अगेन यहां से लेके यहां तक equals to C, ठीक है. Now this also needs to be inside brackets, and since I am doing this and this plus, this entire thing needs to also be in another bracket, ठीक है. यहाँ पे इसका ब्रैकेट डाल देते हैं, इसका ब्रैकेट डाल देते हैं. Now see what it is giving me is 5. Why 5? This means that I should have total number of A's plus total number of C's should be 5. Let's check. A, C, A. Count 5. ये count 5 आ गया है. So I have Sadhbir, if you have to crack such jokes, please crack it in the main forum, because suddenly I'll start laughing and people will have no context. Sadhbir just said that you broke some product's heart. Okay. Anyways, sorry, some product by its nature cannot be put in an array because it is already an array. But yeah, to be fair to some product, it's a brilliant, powerful function. But the nature of business that we are in, we have to use query as opposed to some product. So no offense to some product. अच्छा, तो ये 5 हो गया. अब guys, can someone tell me how should I modify this formula? मैं इसको chat में डाल रहा हूँ. How should I modify this formula so that मेरे पास सारा quantities भी आ जाए? I have to write something here, okay, or modify this formula and give it to me. I would really like you guys to try. Modify this sum product formula in a way that the final answer is going to be the sum of all the quantities of A and C. Please try. Yeah, you can unmute and tell me also.
Anyone trying? Should I give you guys access to the sheet? You guys want to edit this? चलो edit कर लो, कोई बात नहीं. Make a copy of sheet 2. You can make a copy of this cell and then maybe try it in, make a copy of the worksheet itself. Give it your name and try. अच्छा चलो, those of you who are trying, good. Let me not waste time because I have half an hour and I have quite a few things to cover. मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये procedure बहुत ही मतलब similar है with this. All you need to do is basically add this quantity column. तो यहाँ पे quantity column को यहाँ पे इसके साथ add करने के लिए you can either use a comma if you like, okay? But if you use a comma, you will need to use a multiply by 1 or you will have to use a double dash. ठीक है, मैं दिखा देता हूँ दोनों प्रोसीजर. कॉमा अगर मैं यूज कर रहा हूँ with quantity here, ठीक है, then what I'll have to do is I'll have to put a double dash here and I have the answer 298. Let's see if I'm getting 298. So A C A 298. My answer is correct. ठीक है. A few other ways of solving this. इसको मैं ना नीचे ट्रैक कर देता हूँ. So the double dash will be in the same this thing. अगर मुझे ये मेथड यूज करना है सिंपली मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे ये डबल डैश यहाँ से हट जाएगा and instead of the comma we are simply going to use multiply, giving me the right answer. And if I have to use this method of multiply by 1, then also I can do this here instead of this double dash. इसको पूरा मुझे multiply by 1 करना पड़ेगा. यहाँ पे ये हो जाएगा within the brackets, it should be okay. I can put another bracket but it's not necessary. Yeah. So Chetan got that right. Brilliant. Congratulations. So guys, these are really, some pretty, kick-ass revolutionary ways of, working. So, keep practicing, right? So Ankur is asking, what does the double dash do in the function? So I had explained earlier, double dash will simply convert the list of trues and falses into ones and zeros. It's like multiplying with 1. Okay? So it is something like this that I've done here. All right, let's move on. This particular thing, that I taught you guys, I would not have taught you guys in a free forum. This is generally, I would say, something that I would like to get paid for, honestly, through my DME workshop. Only request to you guys is when the videos come out, please do, comment on it, like it, please do share it, because at the end of the day, I also have to take care of my employers' interests, right? So there is a commercial angle to it. So please, I would really request you guys, go to the channel and please put in, wherever you feel we have earned your, likes. Please do, make those comments in the group. I mean, sorry, in the YouTube channel. YouTube channel मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था. It is this. 1 second.
इसको सबके लिए एक बार डाल देता हूँ। So this is Sandeep sir's channel. ठीक है, please do the needful, guys. You guys know the drill, right? अच्छा, moving on to transpose. ट्रांसपोज क्या करेगा? रोज को कॉलम में बदल देगा, कॉलम्स को रोज में बदल देगा, सिंपल। ठीक है, देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश है और मैं आज आपको गूगल शीट के एक फंक्शन ट्रांसपोज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे हम जानते हैं, ट्रांसपोज की डेफिनेशन, द ट्रांसपोज रॉ या कॉलम का होता है किसी भी रेंज या फिर किसी भी एरे में। तो अभी देखिए, हमने यहाँ पर अपना एक कॉलम ले लिया है, हम इसको पहले ट्रांसपोज करके देखते हैं। ट्रांसपोज करने के बाद मैंने इसका रेंज ले लिया है एंड एंटर। तो देखिए, मेरा एक कॉलम था जो कि अब मेरे एक रॉ में चेंज हो चुका है ट्रांसपोज के बाद। अब मैं इस ही रॉ को दोबारा ट्रांसपोज कर देता हूं, तो अब वो जो चेंज होगा वो होगा एक कॉलम में। ठीक है, तो ये तो हमारा रॉ चेंज हुआ कॉलम में एंड कॉलम चेंज हुआ रॉ में। अब हम एक रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए पहले मैंने अपनी एक रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है, एंड मैंने एंटर किया। तो देखेंगे आप, जो मेरे हेडर्स थे, मतलब ये कॉलम हुआ, वो एक रो में आ चुकी है, देखिए। और वैसे ही मेरा ये वाला जो रो थी वो एक कॉलम में आ चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज में भी ये रो को कॉलम बना देता है और कॉलम को रो बना देता है, और इंडिविजुअली भी ये रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देता है। तो गूगल शीट का ट्रांसपोज फंक्शन अब आपको पता चली गया होगा, ठीक। एनी डाउट्स गाइस? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इंपोर्ट रेंज, सबका फेवरेट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कि हमें इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज़ करते क्यों हैं। इंपोर्ट रेंज फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी और शीट का डेटा किसी और शीट के अंदर हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। हम इंपोर्ट रेंज का बेसिकली यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि हम और शीट का डेटा एक दूसरी शीट पे लेके आ सके, इंपोर्ट करा सके। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इंपोर्ट रेंज फंक्शन हम यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूंगी इंपोर्ट रेंज। सबसे पहले मुझे इंपोर्टेंट फंक्शन के अंदर क्या देना है। सबसे पहले मैं दूंगी मेरी स्प्रेडशीट का यूआरएल। कौन सी स्प्रेडशीट? ये वो स्प्रेडशीट होगी जिससे मैं डेटा को इंपोर्ट करना चाहती हूँ, जिसके डेटा को मैं इस ब्लैंक शीट के अंदर लेके आना चाहती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर शीट है, इसका यूआरएल मैं पेस्ट कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मुझे पुट कर देना है ये पुट कर देने के बाद अब मुझे इसको मेरी शीट के अंदर जो भी सब शीट है जिसका डेटा मुझे चाहिए उसका मैं नाम दूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस शीट के अंदर से टास्क वाली जो मेरी सब शीट है उसका डेटा कॉपी करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, टास्क। टास्क शीट का डेटा है मेरा। सबसे पहले हम लोग एक सेल की वैल्यू को इसमें इंपोर्ट कराते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है। मान लीजिए मैं सेल नंबर A2 की वैल्यू को
इस शीट पे इंपोर्ट कराना चाहते हैं। ये देखिए सेल नंबर A2 इस शीट में मेरी इस शीट के अंदर जो भी सेल नंबर A2 था उसकी वैल्यू मुझे कहाँ मिल गई, यहाँ पर मिल गई इस शीट के अंदर, जो मेरी ब्लैंक शीट थी। ये देखिए सेल नंबर A2 की वैल्यू मेरी, ये देखिए सेल नंबर A2 में मेरी यही वैल्यू है, यही वैल्यू मुझे कहाँ पर इंपोर्ट हो गई है, इस दूसरी शीट पे। अभी तो मैंने एक सेल इंपोर्ट किया है, अगर मैं चाहूँ कि जितना भी डेटा उस शीट के अंदर है, जितना भी उसके सब शीट जो कि टास्क नाम की सब शीट है उसके अंदर जितना भी डेटा है मैं सबको लेके आ सकूँ, या फिर कोई रेंज में डिफाइन कर दूं कि इतने से इतने तक डेटा मुझे इस शीट के अंदर चाहिए, तो वो मैं कैसे करूंगी। अब देखिए आप वो कैसे करते हैं। अगेन मुझे स्प्रेडशीट का यूआरएल देना है, तो मैं इस शीट का यूआरएल ले लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद मुझे क्या देना है, इसको शीट का नाम। जैसे कि आपने देखा था मैंने ऊपर जो इंपोर्ट रेंज यूज किया था उसमें मैंने सिर्फ एक सेल की वैल्यू दी थी। अब मुझे इसमें चाहिए कि मेरा पूरा डेटा मैं एक रेंज दे सकूं उसके अंदर। तो देखिए रेंज कैसे देनी है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं पूरा डेटा लेके चलूंगी, मैं इसको रेंज दूंगी A1 से लेके AD तक। AD तक मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं किसी भी रो को डिफाइन नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ ये A6 तक ही ले या फिर A7 तक ही ले। मैं क्या कर रही हूँ, उसको AD तक दे रही हूँ। क्यों, ताकि जितनी भी रोज में मैं एंट्री करती हूँ या फिर जितने भी चेंजेस करती हूँ वो ऑटोमेटिकली इस शीट के अंदर भी चेंज होता रहे। ये देखिए मेरी उस शीट का डेटा इस पे पूरा तरीके से आ चुका है। मैंने पूरा सेल AD तक लिया था, वहां पे कॉलम नंबर AD तक, तो उसने पूरा मुझे दिखाया। अब देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर कोई आईडी ऐड करूँ या फिर कुछ भी रोज के अंदर लिखूंगी तो वो डेटा क्या वहां पर जाएगा उस शीट के अंदर? बिल्कुल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने वहां पर रेंज AD तक दी थी पूरी। अभी मैं अगर यहाँ पर आईडी भी पुट कर दूं कुछ भी, तो आईडी यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। ये देखिए मैंने आईडी यहाँ पे पुट कर दी। अब हम इस शीट पे आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी अपने आप चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग दूसरी शीट का डेटा किसी भी शीट में इंपोर्ट कराने के लिए इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। Okay, few pro tips, guys. Whenever you are writing the import range का function, ठीक है, ये जो पूरा जागृति ने URL पेस्ट करा दिया HTTPS से लेके ये पूरा एडिट ग्रेड ब्ला 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 200 तक, ये आप मत कीजिए। From my personal experience, I can tell you, if you only take the file key, which is basically t/ के बाद this the longest set of characters, that is basically the file key. Every single Google sheet
or Google Doc or Google Slide, they have their own individual unique file name or file keys. Okay, you can just paste this file key in the import range, and then what you can do for the other bit, which is the worksheet name. Okay, instead of this worksheet name, what you can also do is you can put a defined name range. ठीक है, जो टेबल का जो नाम होता है ना, if you put the table name there, what will happen is even if somebody changes the worksheet name, the data will still be imported. Okay, so try it once. Those of you, you know, who felt you knew import range out and out, this is one tip from my side to you guys. Okay, let's switch over to acha, is there any question on import range? Import range works best with the query function. You know, you can club a query function with import range, and you can get exactly the columns that you need in whatever order you need with the filtration criteria. So those of you who have not explored query function, please explore query function. Again, there is a video on MIS Saturday only. You can try and look at that. I highly recommend Laila Garani's channel for this. Also, Ben Collins' channel. Let's look at import HTML. Hello guys, this is Damini from CEO IT Works. So today we are learning import HTML function. Import HTML function basically वर्क करता है किसी भी वेबसाइट से डेटा इंपोर्ट करने के लिए. अभी तक हमने इंपोर्ट रेंज किया था. जो इंपोर्ट रेंज स्प्रेडशीट पे वर्क करता है कि अनदर स्प्रेडशीट से किसी न्यू स्प्रेडशीट पे डेटा इंपोर्ट करने के लिए. एंड ये है इंपोर्ट HTML कि अभी हमारा कोई वेबसाइट है और वहाँ पे कुछ हमारा डेटा है तो उसे कैसे इंपोर्ट करें, ये उसके लिए यूज़ होता है. और ये इंपोर्ट HTML में सिर्फ ये टेबल्स को और ये लिस्ट को इंपोर्ट करता है. सपोज कि मैंने एक वेबसाइट यहाँ ओपन किया हुआ है, कम्युनिटी एरियाज इन शिकागो. अब यहाँ पे ये किया हुआ है. तो अब यहाँ देखोगे डेटा में, तो यहाँ डेटा में क्या है कि यहाँ पे देखो फर्स्ट टेबल, ये टेबल है क्योंकि इसका यहाँ पे हेडर्स हैं एंड इसके नीचे डेटा है. ये फर्स्ट टेबल हो गया. और ये टेबल है या नहीं है इसका आपको कैसे पता चलेगा? जैसे आपने इस पे क्लिक किया, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो इसको सिलेक्ट करने के लिए, तो आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आया है. आप जैसे इंस्पेक्ट करते हो एक साइड में न्यू टैब ओपन हो जाएगा इंस्पेक्ट करने के लिए. एंड ये यहाँ पे आपको शो होगा या TR आ रहा है. TR मीन्स इसका टेबल एंड रो का वो आ रहा है. यहाँ पे आप देखोगे टेबल क्लास, तो इसका पता चल गया कि ये क्या है, टेबल है ये. आप यहाँ देख रहे हो TR से स्टार्ट हुआ है टेबल रो. फर्स्ट रो ये हो गया, सेकंड रो ये हो गया, थर्ड रो ये हो गया. तो बेसिकली ये टेबल्स के लिए वर्क करता है. मैं इसको क्लोज कर देती हूँ. ये हमारा टेबल है. अब ये इंपोर्ट कराना है उसमें. एंड इसमें शायद और भी टेबल्स हो. फर्स्ट टेबल हमारा ये है. एंड किसी भी वेबसाइट पे कितने भी टेबल्स हो सकते हैं. तो अभी इसमें एक ही टेबल है, तो मैं आप जैसे इसको इंपोर्ट कराती हूँ यहाँ पे. यहाँ पे ये फंक्शन मैं पुट करती हूँ, import HTML. यहाँ पे आप देखोगे इसका जो स्ट्रिंग आ रहा है वो आ रहा है import data from table list in an HTML पेज. ये यहाँ पे किया. इसमें वही जैसे import range में होता है URL फर्स्ट लेना. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेबसाइट का URL लेंगे. जैसे ये वेबसाइट है, इसका URL ये लिया, कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया. अब नेक्स्ट क्या है इसमें क्वेरी कि हमें यहाँ पे इंपोर्ट कराना क्या है. या तो ये टेबल इंपोर्ट कराएगा या फिर ये लिस्ट इंपोर्ट कराएगा. तो अभी हमें यहाँ पे टेबल इंपोर्ट कराना है. अब यहाँ पे बस स्ट्रिंग देना है कि टेबल है तो टेबल लिख देंगे.
डबल मार्क में, एंड कौन सा टेबल कराना है, फर्स्ट कराना है, सेकंड कराना है, थर्ड कराना है। क्योंकि क्या होगा, अभी तो ये वाला जो मैंने विकिपीडिया ओपन किया हुआ था इसमें तो बस एक ही टेबल है, तो यहाँ पे एक टेबल इसने शो किया है सारा डेटा कंपाइल करने के लिए, बट कहीं कहीं पे ये स्प्लिट भी हो सकता है। लिस्ट ऑफ कम्युनिटी एरियाज में यहाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एरियाज का यहाँ दे दिया, फिर कुछ एरियाज का फिर बाद में दिया है, तो ये इस टेबल को स्प्लिट भी इसमें हो सकता था विकिपीडिया में, बट अभी नहीं है, अभी यहाँ पे बस एक ही शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें 1 लिख दिया, इंडेक्स क्या कर दिया 1, कि हमें फर्स्ट वाला जो टेबल है वो इंपोर्ट कराना है। और जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा। अब आप देखोगे यहाँ पे सारा डेटा इंपोर्ट हो गया है, जो भी टेबल थी इसमें आप देख लो, नंबर हेडर से स्टार्ट हुआ है और इसका जो एंड है वो टोटल पे है। अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, यहाँ पे ये टेबल नंबर हेडर से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट टोटल होगा। इसमें आप ये देखोगे टोटल एंड शिकागो, तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ये आ गया टोटल एंड शिकागो आ गया है इसमें, एंड इसका टोटल आ गया। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब ये टेबल था, तो टेबल में आपने देख लिया मल्टीपल कॉलम्स हैं इसमें और मल्टीपल रोज हैं। और जब लिस्ट होगा तो लिस्ट में आपको पता चलेगा, जैसे अभी यहाँ पे मैंने इसको इंस्पेक्ट किया था राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे ये आपका शो हो गया था TR एंड टेबल क्लास, तो इससे आपको पता चल गया कि ये टेबल है। अब इन केस जैसे अब हमारा ये है, आपको लगेगा कि शायद ये भी टेबल होगा, बट ये टेबल नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे कि ये क्या है इसका पता करने के लिए, जैसे आपने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, आप इंस्पेक्ट करोगे, इसमें आप देखोगे ये आ गया हमारा, ये यहाँ पे क्या है, लिस्ट। अब जैसे मैं इसको करती हूँ, तो अब यहाँ पे नॉर्मल हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसे इस पे एंटर किया है, इसमें आपने कर दिया यहाँ पे लिस्ट। अब इसमें जो भी लिस्ट होगी ये उसको इंपोर्ट कर देगा। यहाँ पे ये देखो, अब ये लिस्ट में डेटा आया है। अगर आप राइट क्लिक करके इसको नहीं भी डिफाइन करते हो कि आप चाहते हो कि वैसे ही हो, तो आप यहाँ पे एक बार लिस्ट टाइप करके देख सकते हो और एक बार टेबल टाइप करके देख सकते हो। एंड अगर इसमें एक ही लिस्ट है तो वो एक लिस्ट आ जाएगा, अगर सेकंड लिस्ट होगा तो यहाँ पे अभी इसमें जैसे डेटा में सेकंड है नहीं लिस्ट, तो अब मैं इनकेस करती हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं कि कौन सा लिस्ट इसमें आएगा। इसमें कोई लिस्ट है नहीं, और इसमें लास्ट से कुछ आया है, सिंस का करके कुछ आया है इसमें। इसमें ये आया है नोट, ये नोट है इसमें लिस्ट के उसमें फॉर्मेट में। और मैं यहाँ पे करती हूँ, जैसे इसमें टेबल किया, टेबल, सेकंड टेबल देखते हैं, सेकंड टेबल इसमें कौन सा आता है। तो इसमें अब ये आया है, इसमें ये आया है कम्युनिटी एरियाज इन शिकागो, और यहाँ पे तो इसमें से इसने सेकंड टेबल अपना ओपन कर लिया है, ये वाला। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से सेकंड टेबल आ जाएगा आपका। जैसे मैंने इस पे किया कम्युनिटी एरियाज इन शिकागो, तो यहाँ पे आप शो पे क्लिक करोगे तो शो पे ये टेबल इधर आ गया है। फर्स्ट टेबल ऊपर हो गया था, सेकंड टेबल ये है कम्युनिटी एरियाज इन शिकागो, एंड थर्ड टेबल ये होगा नेबरहुड्स इन शिकागो। तो आप यहाँ पे जैसे चेंज करोगे इसको, यहाँ चेंज करते हो, जैसे टेबल 3 करते हो, तो
नाइबरहुड्स वाला आ जाएगा यहाँ पे, नाइबरहुड्स इन शिकागो। अब आप देख रहे हो ये डेटा यहाँ आ गया है। तो ये इस तरीके से import HTML वर्क करता है। वेब से डेटा इंपोर्ट करता है कि वेब में जो भी टेबल है एंड लिस्ट है, आप इस वेब से आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो शीट में। आप टेबल कॉपी नहीं करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि एक ही बार में डेटा आ जाए और कॉपी ना करना पड़े एंड सेम फॉर्मेट में आए, तो आप इस कंडीशन में import HTML फंक्शन यूज कर सकते हो। आई होप कि ये सभी को समझ आ गया होगा। Okay, that was that. Two more this thing for today. Yeah, I think we have time. Import XML. Hello guys, this is Damini from CEO IT Works. So today we are learning import XML function. Import XML function basically work करता है किसी भी वेबसाइट से डेटा पिक करने के लिए। एंड ये क्या करता है कि जैसे हमारा कोई भी वेबसाइट है, विकिपीडिया है, एंड उस पर काफ़ी सारे टेबल्स हैं और वो हमें इंपोर्ट करना है। import HTML में क्या होता है कि वो 1 by 1 import करता है, वो कंपाइल नहीं करता कि अगर उसमें 10 टेबल्स हैं तो आपको 10 टाइम्स उसमें import कराना पड़ेगा कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड ऐसे। और import XML में क्या होता है कि अगर आप इसमें एक ही बार import XML फंक्शन लगाओगे तो उस वेबसाइट पे जितने भी टेबल्स हैं वो एक साथ कैलकुलेट हो जाएंगे एंड उधर से कैलकुलेट होके यहाँ पे import हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला एक वेबसाइट है, कम्युनिटी एरिया शिकागो। ये मैंने इसमें पहले से ही ऑन कर दिया है कि आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हो, आप कहीं से भी डेटा पिक कर सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि आप यही इसी वेबसाइट को ही यूज़ करो, आप किसी भी वेबसाइट विकिपीडिया पे जाके आप यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हो। तो अभी आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे एक टेबल ये है, ये पूरा ऊपर से है कम्युनिटी एरियाज इन शिकागो। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ये लिस्ट ऑफ कम्युनिटी एरियाज ये टेबल है एंड इसमें फिर आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जितने भी टेबल्स होंगे वो इसमें शो हो जाएंगे। जैसे कम्युनिटी एरियाज इन शिकागो एक ये हो गया। अब इसमें कोई और होगा जैसे नाइबरहुड्स इन शिकागो, तो आपका सेकंड थर्ड टेबल ये हो गया एंड शिकागो आर्टिकल्स। तो अगर इसमें कुछ होगा तो वो आ जाएगा। अब ये आपके क्या हो गए टेबल्स की, इसमें टू है, एक ही वो नहीं है। लिस्ट होता है, लिस्ट क्या होता है कि वो एक ही उसमें एक ही कॉलम में लिस्ट आ जाएगा। बट जब यहाँ पे ये आ रहा है आपका, फर्स्ट ये हो गया हेडर हो गया रिकॉग्नाइज बाय द सिटी ऑफ शिकागो एंड सेकंड ये हो गया कि इसमें कौन कौन से सिटीज हैं। तो अब यहाँ पे कितने हो गए, 3-4 टेबल्स हो गए। अब आप चाहते हो कि एक ही बार में कंपाइल होके डेटा इंपोर्ट हो जाए। तो मैं शीट पे इंपोर्ट XML का फंक्शन यूज करती हूँ। import XML आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट आ गया, इसका स्ट्रिंग क्या है, imports data from structured data online। जो भी ऑनलाइन हमारा डेटा होता है ये उसको इंपोर्ट करता है। अब यहाँ पे ये लिया, ये इसका URL कॉपी किया यहाँ से एंड यहाँ पे इस URL को पेस्ट कर दिया। अब इसमें सेकंड सिंटेक्स क्या है, XPath क्वेरी, कि हमारा क्वेरी क्या है, हमें यहाँ पे क्या इंपोर्ट कराना है। जैसे अभी टेबल हम इंपोर्ट करा देते हैं, इसमें ये भी डबल कोटेशंस में आएगा। अब टेबल के लिए आप यहाँ देखोगे एग्जाम्पल में किस तरीके से दिया है कि क्या क्या यहाँ पे लेना है, या तो आप उसका कोड ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे उसमें टेबल का कोड मैंने लास्ट वीडियो में HTML में बताया था कि टेबल का TR होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे करती हूँ, जैसे ये किया, अब यहाँ पे नॉर्मल मैंने टेबल लिख दिया। अब जैसे ही मैं एंटर करती हूँ आप यहाँ देखोगे तो यहाँ सारे टेबल्स आ गए। बट सारे टेबल्स किस तरीके से आए हैं, ये यहाँ पे फर्स्ट ये हो गया शिकागो का एंड सेकंड इसी में डेटा आ गया सारा जो भी था, कंपाइल होके आ गया, नंबर नेम जितने भी हेडिंग्स थे टेबल के वो सब कुछ इसी में आ गया है। अब यहाँ पे आपको ये पता नहीं चलेगा कि टेबल है कौन सी एंड इसका डेटा क्या है। तो अब यहाँ देखोगे यहाँ पे फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। तो यहाँ पे टेबल्स आ गए बट इसमें कुछ पता नहीं चल रहा, सारा कंफ्यूजन वाला हो गया कि सारा डेटा कंपाइल हुआ है, कोई कॉलम इसमें दिख नहीं रहा है, ना ही कोई रो दिख रही है इसमें।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो सिंपल import XML ऐसे होता है कि आपका कोई भी टेबल होगा डेटा से वो पिक करके यहाँ पे आ जाएगा, एंड इसमें आपको चाहिए सीक्वेंस वाइज आए कि जो टेबल है वही टेबल का फॉर्मेट रहे एंड सभी टेबल्स आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे ये टेबल किया था, इसमें ऐसे आप साइन आपको लगाने हैं एंड आपको यहाँ नॉर्मल क्या करना है, टीआर हो जाएगा आपका टेबल रोज, एंड जो भी वहाँ पे रोज होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब आप ये देखोगे मैंने बस यहाँ पे टीआर लगाया था, तो जो भी हेडर्स थे कॉलम्स भी आ गए, जितने भी रोज थे रोज भी आ गए। फर्स्ट टेबल आपका ये हो गया, सेकंड टेबल आपका ये हो गया, कम्युनिटी एरियाज इन शिकागो, neighborhoods in Chicago, recognized by the city of Chicago। आप यहाँ देखोगे सारे यहाँ पे डेटा में आ गया है कि इसमें क्या क्या है। अब आपको यहाँ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी टेबल का फॉर्मेट था टेबल फॉर्मेट में आ गया है। मैं आपको एक और बार ये करके दिखा देती हूँ। एंड ये टेबल का किस तरीके से पता चलेगा, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था कि उसमें इंस्पेक्ट करते हैं कि जैसे ये डेटा हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक की और इस इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। जैसे आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाता है जिसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे ये है, आप ये देखोगे टीआर में क्या है, ये टेबल है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो वो टेबल का फॉर्मेट आएगा। मैं टेबल पे जाती हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं इस टेबल पे जाऊंगी तो इसमें क्या हुआ कि सारी टेबल को एक साथ हाईलाइट कर दिया है। और जैसे ही मैं इस पे टीआर पे जाती हूँ तो इस टीआर पे क्या है, अब यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करती हूँ तो फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये रोज वाइज यहाँ पे इसने डेटा शो कर दिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे टीआर लगाया था जिससे आपको पता चल जाए। मैं एक और बार ये फिर से बता देती हूँ फंक्शन import xml इज इक्वल टू import xml डबल कोड, यहाँ से आपको इसका URL लेना है, ये हो गया आपका, एंड यहाँ पे ये डबल कोटेशंस मार्क में ही आपको लेना है। यहाँ पे आपने स्लैश लगाया एंड यहाँ पे आपने नॉर्मल टेबल लिखा था, तो आपका सिर्फ टेबल का जितनी भी टेबल्स हैं वो सारा डेटा एक ही बार में कंपाइल कर दिया था। ना वहाँ पे कोई रो डिफाइन हुआ था, ना ही वहाँ पे कॉलम डिफाइन हुआ था, इसलिए अब यहाँ पे। और टीआर का मैंने आपको बताया था, टीआर क्या है, टेबल रोज को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे जैसे हमने टीआर लगाया तो वो एक उसने सीक्वेंस में डेटा दे दिया। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। I hope so too. एक लास्ट आज के लिए कर लेते हैं हाइपरलिंक, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। With this we will actually complete our entire formula.curtbox का जो वेबसाइट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे आज। ठीक है, हेलो, 3 more minutes मेरा नाम please. योगेश है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइपरलिंक फंक्शन के बारे में। तो हाइपरलिंक क्या है और वो कैसे काम करता है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। उसके बारे में बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको ना उसका सिंटैक्स दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे अगर हाइपरलिंक, तो आप इसका सिंटैक्स देखेंगे, ये सबसे पहले यूआरएल पूछता है। यूआरएल वो हो गया कि हमें किसी को भी कोई भी हाइपरलिंक, कोई भी जैसे सिंपल सा यूआरएल है, जैसे मैंने गूगल फॉर्म का जो है वो यूआरएल लिया हुआ है, तो मैं ये यूआरएल ले लेता हूँ। इसको मैं सिंपल एक बार कॉपी कर लिया। ये यूआरएल लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट करूँगा डुअल कोट्स के अंदर। मैंने उस यूआरएल को कोड के अंदर पेस्ट किया, कॉमा, उसके बाद मैं क्या है, इस यूआरएल को कोई अगर वो देना चाहता हूँ नाम या कोई लेबल, तो मैं वो दे सकता हूँ। जैसे मैंने क्लिक केयर कर दिया, मैं क्लिक केयर थोड़ा वैसे कर देता हूँ। मैंने क्लिक केयर किया और सिंपल मैं इसको क्लोज करके एंटर कर दूंगा। अब आप देखेंगे जो मेरा जो यूआरएल है, ये जो फॉर्म का जो यूआरएल है, इतना बिग यूआरएल था, बट ये हाइपरलिंक से क्या हो गया, ये शॉर्ट भी हो गया और ये लिंक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म ही ओपन होगा। अब देखिए ये फॉर्म ओपन हो जाएगा अभी। ये देखिए ये फॉर्म ओपन हो गया। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, हाइपरलिंक फंक्शन के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरे यूआरएल जो शीट पे पड़े हुए हैं तो मैं उनको शॉर्ट करके यहाँ पे ला सकता हूँ। और एक चीज और है, अगर मैं इस शीट को पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश जो इसका लिंक हम लेते हैं यहाँ से,
तो पब्लिश टू द वेब करने पर जो लिंक मिलेगा उसमें क्या होता है, बाकी चीजें नॉन एडिटेबल होती हैं, बट आप यूआरएल पे क्लिक कर सकते हो, उस पे यूआरएल पे क्लिक हो जाता है, कोई इशू नहीं होता है। और जिस तरीके से ये फंक्शन के थ्रू हुआ, जैसे फंक्शन के थ्रू जैसे हमने ये बनाया हाइपर लिंक, तो मैं इसमें किसी का भी लिंक डाल सकता हूँ, कोई वेबसाइट का लिंक डालना चाहता हूँ या कोई शीट का लिंक डालना चाहता हूँ, तो मैं वो सारी चीजें इसमें डाल सकता हूँ सिंपल इस तरीके से। मैंने यूआरएल डालना है डबल कोट्स के अंदर कॉमा करके, और मैं इसका एक लेबल दे दूंगा। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला होता तो मैंने वेबसाइट यहाँ पे लिख दिया और मैंने सिंपल इसको क्लोज कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी वेबसाइट खुलेगी, अगर मैंने वेबसाइट का यूआरएल डाला होगा तो इस तरीके से हम इसमें बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे ये फंक्शन से यूज हो रहा है, फंक्शन के अलावा भी हम इसमें एक चीज है उससे भी यूज कर सकते हैं, तो वो है ये। आप ये देखेंगे ऊपर जो है इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है, तो जिस भी सेल पे जाके, इस सेल पे अगर मैं करना चाहता हूँ तो इस सेल पे जाके मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद क्या होगा, फिर से ये लिंक पूछता है, तो मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ। यहाँ पे लिंक डालने के बाद मुझे कोई टेक्स्ट जो डालना है वो मैंने डाल दिया फॉर्म, और इसको अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से भी मैं जो है वो यूआरएल इसमें अटैच करा सकता हूँ। एक जो है यूआरएल हम इसके थ्रू कर सकते हैं इंसर्ट लिंक के थ्रू, और एक जो है हाइपरलिंक फंक्शन को यूज करके। तो ये दो तरीके हैं कोई भी हमारी जो लिंक्स हैं उनको गूगल शीट पे रखने के लिए। पब्लिश लिंक होने के बाद इस फाइल को अगर मैं पब्लिश कर दूं, उसके बाद जो है ये क्लिकेबल होता है। तो ये यूज है इस हाइपरलिंक फंक्शंस का। इसका सिंटेक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस पे सिंपल ऐसे टाइप करके और आप सिंटेक्स वगैरह देख सकते हैं। ये रहा। Okay, so that officially brings us to the end of uh, formulas.cuitbox.com का जो वेबसाइट था उसका वॉक थ्रू बेसिकली। ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आई कैन टेक इट। Ankur ji, since you have been so patiently waiting and you had asked me a question about Google Finance, I haven't overshot my I have overshot my time, but since it's going to help you, I'm going to go ahead and show you. Okay? So the question was, अभी हम import HTML या फिर import XML कर रहे हैं. Is there a better way, quicker way to get, let's say, stock prices, right? So you have a function called Google Finance. Okay, Google Finance में देखिए हर एक स्टॉक का ना एक टिकर होता है, ठीक है? सो अंकुर जी, गिव मी योर फेवरेट स्टॉक का नेम। ITC. So I will type ITC ticker. Okay, एक सेकेंड। ITC ticker symbol, I think it should be ITC, एक सेकेंड मेरे को देखना पड़ेगा। I think it should be ITC itself, or best to do is ITC ticker for Google Finance. Could be ITC Limited. मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, either ITC or ITC Limited. So what we will simply do here, na, we'll just put this in double quotes. Okay, ITC Limited is not there. ये देखिए, this is the current price, 258. ठीक है, this refreshes in about 20 minutes, so it's not completely live. Okay, but with this, what you can do is you can build your portfolio which can look like this. So you can have all your list of all your tickers. Okay, you can put your current stock price like this, Google Finance, at what price you have purchased, how many shares you have purchased. You can do a percentage up and down based on that. You can put in your buy value. You will have your current value by multiplying the current
stock price and the amount of shares you have purchased. Okay, you'll have your current value. You'll figure out it's going up and down. You can even use a sparkline formula here to see the 1 year, graph. This is a little complicated. You'll have to pull in the entire thing, and then, you can basically take your call to, hold or to sell. So pretty good things. Okay, I'll close with that, guys. Thank you so much for participating, and have a good weekend. Cheers. Bye-bye. Bye, everyone. Most welcome. Most welcome. Thank you. Thank you, Satdev. Thank you, Ankur.